پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ آج جو واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ 10ویں سال کا ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال، اعلان نبوت کا 10واں سال۔ یہ 10واں سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن سال رہا۔ اس سال کو کیا نام پڑ گیا؟ غموں کا سال، عام الحزن، یعنی غموں کا سال۔ اس سال کو غموں کا سال مانا گیا۔ اور اس سال میں ہوا کیا کہ جب باہر آئے، یعنی شعیب ابی طالب، یعنی وہ غار سے جب رہا ہوئے، سب باہر آئے، تو وہ 9واں سال ختم ہوا تھا، وہ 10واں سال تھا، 10واں سال شروع ہو چکا تھا۔ تو اب یہ ہوا کہ سب نے یہ سوچا کہ اب مشکلات پریشانیاں کم ہوں گی، مگر الٹا ہوا۔ الٹا یہ ہوا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اور بھی تکلیف دینے شروع کر دیے، بہت سارے لوگ تکلیف دینا شروع کر دیے۔ اب اسی تکلیف کے حال میں رہا کہ رجب کا مہینہ آیا، تو رجب کے مہینے میں جناب ابو طالب کی عمر 80 سال کے قریب پہنچ گئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ وہ بیمار ہو کر انتقال فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونا ہی تھا۔ قریش خاندان جو تھی، خاندان قریش، وہ قریش خاندان بہت خوشیاں منانے لگی کہ جن کا ڈر تھا، جن کی وجہ سے تکلیفیں دینے میں وہ کثر تھی، اب یہ معاملہ ہو گیا کہ زیادہ سے زیادہ اب تکلیفیں آرام سے دینا شروع ہو گیا۔ تو بڑی مشکلات کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑا، بات سمجھ میں۔ اور اسی سال میں رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ دو لوگ تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو یعنی قریش کو پریشان کرنے سے کچھ رکاوٹیں آتی تھی، مگر ہوا یہ کہ دونوں کے دونوں بھی اس سال چلے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم اٹھانا پڑا۔ اب یہ واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، یعنی مرض الموت، جناب ابو طالب کے لیے مرض الموت کا وقت آ گیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس گئے اور آپ کو پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھانا چاہا اور فرمایا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اسلام قبول کر لیں، تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا کہ میں آپ کی شفاعت کروں گا اور آپ کی مغفرت چاہوں گا۔ تو آپ نے انکار کر دیا
ایک جگہ واقعہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس وقت وہاں ابو جہل اور بھی کچھ لوگ تھے، وہ لوگوں نے ان کو روک دیا اسلام لانے سے۔ پھر ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ خود آپ نے کہا کہ میں اگر اب اس وقت اسلام لا لوں تو قریش کی عورتیں مجھ پر یہ تان دے گی کہ موت کی سختی کو ڈر کر اس نے اپنے بھتیجے کا مذہب قبول کر لیا، اس طرح مجھے تان دیتی رہے گی، تو میں بہتر یہ سمجھتا ہوں اگر اس سے میں یہ خوف مجھے نہ ہوتا تو میں ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو قبول کر لیتا، مگر میں ایسا مرنا نہیں چاہتا کہ میرے بعد لوگ مجھ پر تان دیتے رہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے، ڈر کر، خوف کی وجہ سے یہ مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے آپ نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ حقیقت ہے۔ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اسلام لا چکے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت جب کرتے تھے تو وہ اسلام لا چکے تھے۔ یہ سب غلط ہے۔ اجماع اہل سنت و جماعت کا اجماع اسی بات پر ہے کہ وہ کافر ہی مرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کافر ہی مرے، انتقال ان کا کفر پر ہوا، ان کا انتقال، ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا بلکہ خاتمہ بالسوء ہوا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پہچانتے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، اور وہ نبی ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی وہ حضور کی تائید کرنے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اور حضرت جعفر بن ابو طالب کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو وہ یہی تعلیم دیتے تھے، بات کہتے تھے کہ تم ان کی بات سنو، یہ حق پر ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ اس کے باوجود بھی وہ خود اپنے آپ کو ایمان سے بچاتے رہے۔ اس طرح یہ فقط نہیں، بہت سارے قریش اور بہت سارے یہود میں بھی تھے کہ جانتے تھے کہ حضور کون ہیں، کیا ہیں، اس کے باوجود بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ اب یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو بھی میں آپ کے لیے دعائے مغفرت چاہوں گا۔ جب یہ بات سرکار نے کہی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمایا کہ نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں، یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور کو آپ کی مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کسی مومن کے لیے بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ تمہارے خویش و اقارب ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کوئی اپنا باپ یا اپنی ماں وہ اگر کفر کی حالت میں انتقال کر گیا
تو उनके लिए दुआए मगफिरत मांगना जायज़ नहीं है। बात समझ में आई? जायज़ नहीं है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग हिंदुओं के लिए यानी गैर कौमों के लिए, मुशरिकीन के लिए मोहब्बत की वजह से उनकी अच्छाई बयान करते हैं कि देखो वो कितने अच्छे थे, वो ये थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे। ये इस तरह कहना जायज़ नहीं है, जबकि वो मुशरिक हैं और शिर्क के हालत में इंतकाल हुआ है, कुफ्र की हालत में इंतकाल हुआ है, तो मोमिन को उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगना जायज़ नहीं है। बात समझ में आई? हाँ, वो अगर बाप ही क्यों ना हो, वो माँ ही क्यों ना हो, वो भाई ही क्यों ना हो, वो भावज ही क्यों ना हो, वो बहन ही क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, वो दोस्त ही क्यों ना हो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना, जो आदमी मर जाता है कुफ्र की हालत में, तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि दुआए मग़फ़िरत तलब करें। बात समझ में आई? उसकी अच्छाई को देखकर, उसकी अच्छाई बयान करते हुए मोहब्बत के एतबार से, या वो कोई तुम्हें मदद किया है तो उस मदद के एतबार से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ चाहना जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने आयत करीमा में बता दिया कि नबी को और मोमिनीन को ये शोभा नहीं देता कि वो मुशरिकीन, जबकि वो जानते हैं कि वो जहन्नमी हैं, तो उन जहन्नमी मुशरिकीन के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करनी चाहिए। अब इस आयत से एक बात और भी ज़ाहिर होती है कि दुआए मग़फ़िरत से मग़फ़िरत हो जाती है। ये बात समझना है कि लोग कहते हैं कि मर जाने के बाद तो अगर ईसाल करेंगे तो ईसाल नहीं पहुंचता, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो वो मग़फ़िरत नहीं होती। ये अहले हदीस लोग जो गुमराह करते हैं, किनको? अहले सुन्नत वल जमात के लोगों को ये गुमराह करते हैं, ये बात कहते हैं कि मरने के बाद अगर आप मग़फ़िरत चाहेंगे तो वो मग़फ़िरत नहीं होती। मरने के बाद अगर तुम उनके लिए कुछ भी सवाब भेजेंगे, ईसाल करेंगे, तो वो ईसाल उनको नहीं पहुंचता। उनकी करतूत जो दुनिया में करे हैं उसके लायक उनको अज़ाब होगा वग़ैरह जो कुछ कहते हैं। इस आयत से वो बात बिल्कुल समझाई जा रही है कि मग़फ़िरत करने से मग़फ़िरत होती है, इसीलिए हुजूर को मग़फ़िरत से रोका गया। बात समझ में आई? मग़फ़िरत से रोका गया कि मग़फ़िरत आप ना करें, अगर आप मग़फ़िरत करेंगे तो मुझे माफ़ करना ही होगा। बात समझ में आई? तो मालूम हुआ मग़फ़िरत चाहना किसी मोमिन के लिए जायज़ है। यहाँ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मग़फ़िरत मुर्दों के लिए, हर मुर्दे के लिए जायज़ नहीं है, ये नहीं फरमाया, बल्कि यहाँ ये फरमाया कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत करना जायज़ नहीं है। बात समझ में आई? तो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत करना जायज़ नहीं है, तो इससे मालूम हुआ कि मोमिनीन के लिए मग़फ़िरत करना, मग़फ़िरत तलब करना जायज़ है। और अल्लाह ताला किसी मोमिन के लिए अगर हम मग़फ़िरत तलब करेंगे तो हमारी दुआ कबूल फरमाएगा और हमारी दुआ की वजह से उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। बात समझ में? ये बात समझना है। इस आयत से खुलकर ये बात साबित होती है कि आप अपने अहबाब जो मोमिन इंतकाल हुए हैं उनके लिए मग़फ़िरत तलब करो। अपने वालिदैन अगर मोमिन इंतकाल हुए हैं उनके लिए मग़फ़िरत तलब करो। मग़फ़िरत जब मांगी जाएगी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। बात समझ में आई? अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। हाँ, मग़फ़िरत उनके लिए जायज़ नहीं है जो मुशरिकीन होते हैं, शिर्क के हालत में मर जाते हैं, कुफ्र की हालत में जो मर जाते हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ तलब करना या उनको ईसाल पहुंचाना जायज़ नहीं है। बात समझ में आई? ईसाल
उनको पहुंचाना जायज़ है जो मोमिन मरता है। मोमिन के लिए ईसाल करना भी जायज़ है और मोमिन उस ईसाल से फ़ायदा उठा रहा है, इसीलिए रोका गया है। इसीलिए रोका गया है कि या रसूल अल्लाह आप उनके लिए मग़फ़िरत न चाहें जो मुशरिक मर जाते हैं। बात समझ में आते? उनके लिए मग़फ़िरत न चाहें जो शिर्क की हालत में इंतकाल कर जाते हैं। बात समझ में आई? तो मालूम हुआ कि अबू तालिब मुसलमान मरे नहीं बल्कि काफिर मरे, उनका कुफ्र साबित है। बात समझ में आई? हाँ, हालांकि वो मोहब्बत करते थे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर से मोहब्बत करते थे, मगर वो मोहब्बत हुजूर से कैसी थी? दुनियावी एतबार से थी। जिस तरह भतीजा और चचा में मोहब्बत होती थी वो मोहब्बत थी। बात समझ में आई? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत करते थे, अबू तालिब, जनाब अबू तालिब हुजूर से जो मोहब्बत करते थे वो मोहब्बत क्या थी? दुनियावी एतबार से थी। अगर यही दीनी एतबार से मोहब्बत होती तो इस्लाम ला लेते। बात समझ में आए? ये जानते हुए भी इस्लाम नहीं लाए, तो इससे साबित हुआ कि वो उनकी मोहब्बत जो थी वो क्या थी? दुनिया का तकाजा था। भतीजा थे और वो भी एकलौते भतीजे थे आपके ख़ास भाई के, और आपके दिल में आपकी मोहब्बत थी, वो मोहब्बत दुनिया के एतबार से थी। तो हमको भी आज हम भी देखते हैं कि कितने कई गैर कौमों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ़ करते हैं। शायर हैं जो नात लिखते हैं, है वो काफिर, मगर क्या लिखते हैं? नाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं। तो उस नात को पढ़कर ये नहीं ख्याल कर लो कि वो मुसलमान है, वो अच्छा है, नहीं, वो ईमान नहीं लाया है तो मोमिन नहीं है। कुछ ऐसे गैर कौम भी हैं जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें करते हैं। अक्सर लोग क्या करते कि ऐसी तारीफ़ों को शेयर करते हैं। देखो कि गैर कौम कितनी तारीफ़ करता है। अरे बाबा, गैर कौम तारीफ़ करने से क्या मिलता है? हम कौम तारीफ़ करना है, घर वाले तारीफ़ करना अफजल है। अफजल घर वाले तारीफ़ करना है। लोग कहते हैं कि घर वाले तारीफ़ करते ही रहेंगे, नहीं, घर वाले तारीफ़ करते हैं तो हक़ है, क्योंकि घर में ज़ाहिर व बातिन मालूम हो जाता है उसका। बाहर तो वो बड़े सज धज के निकलता है, वली बन के निकलता है। बात समझ में आई? बाहर बड़ी नसीहतें करता है, घर में देखना कि उसका चाल क्या है। घर वाले अगर किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो तारीफ़ असल में हक़ होती है। बात समझ में आई? बीवी अगर तारीफ़ करती है अपने शौहर की तो वो तारीफ़ हक़ है। बच्चे अगर औलाद अगर अपने वालिदैन की तारीफ़ करते हैं तो वो तारीफ़ हक़ है। दोस्त व अहबाब अगर करते हैं तो वो तारीफ़ हक़ है। बात समझ में आई? घर में खीशो अकारिब यानी चचा ताया जो भी जितने भी रिश्तेदार हैं वो अगर तारीफ़ करते हैं, भाई अगर तारीफ़ किसी भाई की करता है तो वो तारीफ़ हक़ है। बात समझ में आई? मगर लोग ये समझते हैं कि वो तो घर वाले हैं, तारीफ़ करते ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तारीफ़ एक ना एक दिन तो झूठ सच में तब्दील हो जाता। बाहर तो हजरत मौलाना मौलवी बनकर ही आएंगे, बाहर कितने वक्त गुजारेंगे वो, हाँ? वो अपने चंद घंटे अपने आप को बहुत बड़े आदमी बनकर ही सामने आएंगे, तबलीग करेंगे नमाज की। घर में जाकर देखना कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं हैं। घर वाले बोलना कि ये नमाजी हैं कि नहीं हैं, क्योंकि बाहर तो बड़ी तबलीग होती है नमाज की। बात समझ में आई? वालिदैन के बारे में बाहर बहुत कुछ बोला जाता है कि वालिदैन को देख लो, वालिदैन को उफ ना कहो, अल्लाह तुमको ये करेगा, अल्लाह तुमको वो करेगा, अल्लाह अजाब नाजिल कर देगा, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। बोलना बड़ी आसान है,
करना, वालिदैन के साथ सही सलूक होना, वालिदैन कहना कि ये मेरा बेटा, ये इस बेटे से मैं राज़ी हूँ। बात समझ में आई? तो भाइयों की सिले रहमी में बयान होता है। मौलाना बड़े तारीफ़ करते हैं सिले रहमी क्या चीज़ है, हैं? भाई की बड़ी इज्जत करो, भाई से अच्छा सलूक करो, बहन से अच्छा सलूक करो, बहन की मदद करो, भाई की मदद करो। बोलना बड़ा आसान है बाबा, खुद करना भाई बोलना कि हाँ ये मेरा भाई वाकई मेरा दर्द रखता है, ये बड़ी बात है। बाहर बोलता ससुर की इज्जत करो, ससुर भी कौन है तुम्हारा, बाप के दखल में है, बाप के दाखिल होता है, ससुर की इज्जत करो। ससुर बोलना वाकई ये मेरा दामाद मेरी इज्जत करता है। बात समझ में आई? ससुर को पूछेंगे अरे भाई अल्लाह अकबर, ऐसे गालियां देता मुझे, वैसे गालियां देता। बाहर बड़े बड़े बातें होते, बाहर की बात को सही मत समझो हजरत, बाहर भी अंदर भी दोनों सही रहे तो सही, जाहिर व बातिन दोनों सही रहना, तब वो हक पर हैं। कुछ वक्त पड़ा कुछ और, वक्त पड़ा कुछ और। इसीलिए कहते कि भाई अगर किसी को आप चेक करना है, ये आज मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप चेक करना है कि ये सही है या गलत आदमी है, देखना है आपको, गहरी नींद में सोता ना, उसे जाके उठाओ। गहरी नींद में जब एक शख्स सो रहा है, हमारे फाजिल साहब हैं सामने बैठे हुए, मुझे देख रहे हैं, अब इनको चेक करना है तो अच्छा तरीका क्या है बताता हूँ मैं। ये गहरी नींद में जब होते इनको जाके उठाओ। गहरी नींद में उठते ही जब गाली दे देता है तो समझ जाओ इनका बातिन क्या है। बात समझ में आई? गहरी नींद में उठकर वो गाली नहीं देता बल्कि पूछता है क्या है भाई बताइए, इज्जत करता है, तो समझ जाओ ये जाहिर व बातिन में दोनों एतबार से अच्छे हैं। ये एक कसौटी है, ये दे रहा हूँ मैं, देखो आप चेक करो, मालूम हो जाएगा। हजरत को देखना है, हजरत को चेक करना है, घर में बुला को अच्छा खाना गीना खिला गिला को सुला दो, गहरी नींद में उठा को देखो, उन्हों चिड़ को उठे, समझ जाओ हजरत क्या ही। बात समझ में आई? तो घर में गहरी नींद में सोते हुए इंसान को उठा को देखो, उन्हें गुस्सा करके चिढ़ के उठता है, तो आप समझ जाओ कि हजरत का बातिन क्या है, मालूम हो जाएगा आपको। वो गहरी नींद में भी वो अदब से ही उठता है और परेशानी क्या है पूछता है और चिढ़ता नहीं है, तो समझ जाओ इनका जाहिर और इनका बातिन दोनों भी अच्छा है। बात समझ में आई? बात में एक बात आ गई, मैं बात बता के आगे बढ़ता हूँ। ये सब चीज़ें याद रखना, ये सब बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह घर वाले तारीफ करना बड़ी अफजल चीज़ है। लोग कहते हैं कि घर वाले तो तारीफ करेंगे, इतना नहीं बाबा, नहीं करते। ये तो घर वालों को जो तकलीफ होती है ना एक दिन वो ज़बान पर आ जाती है। जितना सहना है बीवी सहेगी, उसके बाद कहाँ नहीं सहती, ज़बान पे आ जाती। बच्चों का भी यही हाल है, वो सहते सहते बाद में वो भी बोल देते, अब बाबा हमारे बाबा माँ बड़े शैतान थे बोलल थे। समझ में आया क्या? तो घर वाले बहुत अफजल। बात समझ में आई? तो यहाँ भी क्या हुआ कि ये भी क्यों डरे, घर वाले कुरैश ताने मारेंगे मुझे, इसलिए इस्लाम नहीं लाए। अल्लाहु अकबर। तो याद रखो, जो शख्स कुफ्र की हालत में मर जाता है, वो चाहे आपको कितनी भी तायीद करे, वो क्या भी कर रहे, उससे तुम्हारी मोहब्बत रहे, तो भी याद रखो उनके लिए दुआए मगफिरत मांगना जायज़ नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही रोक दिया गया है। बात समझ में आई? तो याद रखो, अगर कोई भी आपको ये कहे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब मुसलमान हैं, तो मानना नहीं। क्योंकि राफजी लोग जो होते हैं ना, शिया, ये लोगों का अकीदा है, ये शिया लोगों का ये अकीदा है कि अबू तालिब मुसलमान थे।
बात समझ में आई। अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा नहीं, क्योंकि खुल्लम खुल्ली चीज़ है कि आप इनकार किया, आपने इनकार किया, आपने इनकार किया। आखिरी वक्त में भी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं, तो उस वक्त भी क्या कर रहे हैं, आपने इनकार किया। आप यही कहे कि पहले तो एक रिवायत से मालूम होता है कि अबू जहल वगैरह ने उनको रोका, और दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि उन्होंने खुद ये कहा कि मुझे आर है इस बात पर कि कुरैश की औरतें मुझ पर तान देगी कि मरते मरते वो खौफ के मारे क्या कर दिया, इस्लाम ला लिया। बात समझ में आई। तो इस तरह कहकर आप इंतकाल कर गए कुफ्र की हालत में। इसी पर आप लोग, हमारा सबका अकीदा रहना चाहिए। अब एक बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत चाहा कि मेरे चचा जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं और मेरा साथ देते हैं, वो मुसलमान हो जाएं, वो मुसलमान हो जाएं। अब इस बात को लेकर लोगों ने, यानी ये जो लोग अहले हदीस हैं और कुछ देवबंद के कुछ लोग भी हैं, वो ये कहते हैं, वहाबी लोग जिसको हम वहाबी कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल नहीं हुई। याद रखो, सरकार ने दुआ की ही नहीं। कहीं ये बात नहीं है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। एक जगह कल परसों मैं वाक़िया पेश कर रहा था हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने का। वहाँ तो बताया गया कि हुजूर की दुआ कबूल हो गई। वहाँ क्या बताया गया कि हुजूर ने दुआ की, हुजूर की दुआ कबूल हो गई, ये बताया गया। हुजूर ने दुआ की और हुजूर की दुआ कबूल हो गई। तो मालूम हुआ, और यहाँ कहीं भी मुझे ये बात नहीं, हाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश रखते थे, आप ये पसंद करते थे आप कि मेरा चचा क्या हो जाए, मुसलमान हो जाए। खाली हुजूर ने चचा के लिए फ़कत नहीं, बल्कि हुजूर की तो ये चाहत रही, इसीलिए हुजूर को हरीस कहा गया। बात समझ में आई। हुजूर का नाम हरीस है। क्यों कहा गया? हुजूर तो ये चाहते थे कि पूरी कायनात मुसलमान हो जाए। बात समझ में आई। सरकार ये चाहते थे कि पूरी कायनात मुसलमान हो जाए। ये चाहत अलग है, दुआ अलग है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐसा लफ्ज तो मैं कहीं नहीं देखा। दुआ की ये नहीं, ख्वाहिश रखते थे, चाहत रखते थे। सरकार ने दुआ नहीं की, क्योंकि सरकार जानते थे कि मंशाए हक क्या है, अल्लाह की मंशा क्या है। अल्लाह की मंशा को वो ख्याल में रखते थे, तो इसीलिए सरकार ने दुआ नहीं की। और याद रखो, नबी कौन होता है, नबी कौन होता है, नबी की क्या हकीकत है। नबी नबूवत के एतबार से दूसरे इंसानों की तरह नहीं, मगर नबूवत, नबी को एक काम है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाना, करके सिखाना कि इंसान की इंसानियत क्या है, इंसान क्या करना है, प्रैक्टिकल करके दिखाना। बात समझ में आई। तो प्रैक्टिकल करने के लिए बशरियत के तकाजा ये था कि आप चाहते थे कि आपके चचा क्या हो जाए, मुसलमान हो जाए, ये चाहते थे। और अल्लाह की मंशा के एतबार से सरकार ने दुआ नहीं की। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि प्रैक्टिकल करके दिखाना था, इसलिए ये कहा कि मैं मग़फ़िरत चाहूँगा, ताकि ये बात सामने आ जाए कि अल्लाह ताला आयत के ज़रिए से नाजिल हो जाए कि
مغفرت مشرکین کی نہیں چاہنا، وہ اللہ کے طرف سے آ جائے، یہ چاہتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ میں مغفرت چاہوں گا جب تک اللہ منع نہ کرے، لفظ وہ بھی ہے، میں مغفرت چاہتے رہوں گا جب تک اللہ منع نہ کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے طرف سے بات آ جائے، قرآن بن جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن بن جائے، کیونکہ کل کئی صحابی بھی اپنے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرنے لگیں گے، اور حضور سے بھی کہنے لگیں گے یا رسول اللہ آپ میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جو والدین ان کے جو شرک اور کفر کی حالت میں مر گئے تھے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا طلب کرنے کے لیے آگے آ جائیں گے، اور خود بھی مغفرت کی دعائیں طلب کرنے لگیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس لیے یہ اللہ کی طرف سے بات آ جائے، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا۔ اس لیے سرکار نے یہ تمام چیزیں کر کے دکھائے کہ چاہت تو یہ ہے میری کہ ہر ایک مسلمان ہو جائے، مگر منشا یہ ہے کہ میرا چاچا بھی مسلمان نہیں ہوتا تو میں دعا تو نہیں کروں گا۔ لفظ دعا کی بات نہیں تھی، مگر لفظ چاہت کی بات تو تھی کہ سرکار نے چاہا، مگر سرکار نے دعا کیا یہ نہیں تھا۔ مگر اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ سرکار نے دعا کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، کیونکہ نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور نبی کو کر کے گزرنا تھا، انسانیت کو پورے کا پورا مکمل انسانیت کے تحت رہنا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو انسانیت سکھانا تھا، بشریت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ چاچا مسلمان ہو جائیں، مگر آپ نے دعا نہیں کی، کہیں یہ لفظ نہیں آیا کہ سرکار نے دعا کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی چاہت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیگلیکٹ کر دیا۔ نیگلیکٹ نہیں کیا، نیگلیکٹ کیسے کرتا؟ چاہا، دعا نہیں کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یاد رکھیں اطاعت جو ہے بتایا گیا ہے قرآن میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے اطیعوا الرسول و اطاع اللہ، یعنی رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اب ایک بات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تحفہ، کوئی چیز دیتے ہیں تحفہ دے کر اسے مالک بنا دیتے ہیں نا، اسے مالک، اس کو مالک بنا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا یہ خیال رہتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم جس چیز دیے ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھائیں، وہی کام لیں اس چیز سے۔ یہ رہتی نا، یہ اسے بولتے اپنی منشا۔ ہماری منشا یہ رہتی ہے کہ میں اگر کوئی چیز دوں، مثال کے طور پر نائٹ لیمپ دیتے تحفے میں، تو نائٹ لیمپ دیتے ہوئے اس کی منشا یہ رہتی ہے کہ یہ اپنے نائٹ لیمپ کو اپنے روم میں رکھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ روم میں رکھیں۔ اگر وہ نائٹ لیمپ اپنے روم میں باقاعدہ رکھتا ہے، جب وہ بات اسے معلوم ہوتی ہے تو خوشی آتی ہے کہ چلو میں جس مقصد کے لیے اسے دیا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں فرما رہا ہے اللہم مالک الملک، اے ہمارے اللہ تو مالک، ملک کا مالک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، ملک عطا کرتا ہے، ملک کا مالک بنا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں ملک پوری کائنات، پوری مخلوق، تو ملک کا مالک بنا دیتا ہے۔ اب توتی الملک میں کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توتی الملک میں حضور نہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ تعالی مالک ہے ملک کا، اپنی ملکیت حضور کے تحویل کرتا ہے، حضور کو مالک بناتا ہے۔
उसके बाद वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, यानी जिससे चाहता है मुल्क छीन भी लेता है, क्योंकि हकीकी मालिक है वो। बात समझ में आई? तो तूतिल मुल्का में हुजूर नहीं तो कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क का मालिक बनाया गया। और सरकार का तरीका क्या था? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो अल्लाह से है, वो क्या? अल्लाह की मंशा के खिलाफ मुल्क का इस्तेमाल नहीं करना, न करना। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा। सरकार को मुल्क का मालिक बनाया, मगर सरकार उस मुल्क को अल्लाह के मंशा के खिलाफ नहीं करना चाहते। ये था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिजा, ये तकाजा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मुल्क का मालिक मुझे बनाने के बावजूद मैं उस मुल्क को अल्लाह के मंशा के खिलाफ नहीं उसके साथ इस्तेमाल करूंगा। बात समझ में आई? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दुआ कर दे तो मामला अलग होता। सरकार ने दुआ नहीं की, क्यों? सरकार अल्लाह की मंशा को देख रहे थे, अल्लाह ताला की मंशा का इल्म था हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु, इसीलिए हुजूर को इल्म गैब वाला कहते। अल्लाह ताला की मंशा उनको खबर थी कि अल्लाह नहीं चाहता था। बात समझ में आई? अल्लाह की चाहत नहीं थी। और ये भी बताना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजूर था कि तुम्हारी चाहत जो भी रहे, अल्लाह की चाहत जब आ जाती है तो तुम्हारी चाहत को ख़त्म कर देना। ये सिखाना था, ये मकसद था हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह की चाहत गालिब आना तुम्हारी चाहत पर। तो ये भी सिखाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मेरा चचा क्या हो जाए? मुसलमान हो जाए। जब अल्लाह की मंशा गालिब आ गई तो आपने गम नहीं खाया, आपने गम नहीं किया कि मेरा चचा कुफ्र की हालत में मर गया, अल्लाह ताला ने मेरी इस चाहत को पूरा नहीं किया, गम नहीं खाया, बल्कि आप राजी रहे इस बात से कि अल्लाह की मंशा पर आप राजी रहे। तो याद रखो, अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है कि तमाम मखलूक मेरी रिजा चाहती है, या रसूल अल्लाह मैं आपकी रिजा चाहता हूँ। तो मालूम हुआ अल्लाह ताला की रिजा ही हुजूर की रिजा है, हुजूर अल्लाह की रिजा के खिलाफ नहीं है। बात समझ में? इसीलिए इताअत रसूल को अल्लाह की इताअत बताया गया, यानी अल्लाह की जो मंशा। मैं समझाता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं सही समझा रहा हूँ, मेरे अल्फाज मुझे नहीं पता, मगर मैं जो भी मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि याद कि देखो बाबा कि अल्लाह ताला की रिज़ा और रसूल की रिज़ा में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला जो चीज़ चाहता है वही चीज़ को रसूल चाहते हैं, जो रसूल चाहते हैं वो अल्लाह की चाहत ही है। बात समझ में आई? अल्लाह की चाहत ही को रसूल की चाहत है, अल्लाह की चाहत ही रसूल की चाहत है। बात समझ में आई? एक अली कर्रमल्लाहु वजहू जो गुलाम रसूल अल्लाह का ये तकाजा है कि अपने वालिद कुफ्र की हालत में मर जाने की वजह से वो फरमाते हैं कि आपका बूढ़ा चचा कुफ्र की हालत में मर गया। बात समझ में आई? आपने ये नहीं कहा, गम नहीं खाया, बल्कि आपने कहा कि आपका बूढ़ा चचा कुफ्र की हालत में मर गया, अब मुझे क्या करना है उसके साथ बताइए। बात समझ में आई? तो जब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू का ये तकाजा है कि रसूल की मंशा को अपनी मंशा बनाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह, तो रसूल अल्लाह ताला की मंशा भी यही है कि अल्लाह की मंशा को अपना मंशा बनाए। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? बात समझ में? अगर
وہ جو गिफ्ट जो आप देंगे वो गिफ्ट को अगर बेतरतीब इस्तेमाल किया गया, देने वाला देखा कि मेरे दिए हुए चीज को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो उसके साथ बेइज्जती कर रहा है, वो उसकी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है, तो आइंदा वो गिफ्ट देने से रोक देगा, है ना, समझ में आया ना। तो उसी तरह अल्लाह ताला उसी को अता फरमाता है जो अल्लाह ताला की रिजा पर कायम हो जाता है। सारी कायनात अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करके मालिक बना दिया, और हुजूर का तरीक़ा ये था कि उस मिल्क को अपने तरफ से नहीं इस्तेमाल करते थे, बल्कि अल्लाह की मंशा के तरफ से इस्तेमाल करते थे। यानी अल्लाह से जिसे मोहब्बत है हुजूर भी उसी से मोहब्बत करते थे। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह से जिसे मोहब्बत है हुजूर उससे मोहब्बत करते हैं, और पलटा के ये कहते हैं कि हुजूर जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो दोनों बात हकीकत में एक ही हुई। बात समझ में आई? आप हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से मोहब्बत करना भी अल्लाह ही से मोहब्बत करना है, अल्लाह से मोहब्बत करना भी हुजूर से मोहब्बत करना है। सुभान। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो उसी तरीके से यहाँ भी ये मत कहो कि सरकार चाहे, सरकार ने नहीं, सरकार का चाहना बशरियत के एतबार से रहा, उस बशरियत के एतबार से सरकार तो और रहमतुल लिल आलमीन के एतबार से रहा, रहमतुल लिल आलमीन के एतबार से सारी कायनात को मुसलमान देखना चाहते थे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला की मंशा के एतबार से जो जिसको अल्लाह काफिर रखना चाहा काफिर रहा, तो हुजूर भी उस पर राजी रहे। बात समझ में आई? हुजूर भी उस पर राजी रहे। और ये मामले को लेकर ये कहना कि हुजूर की बात अल्लाह सुना नहीं, और अल्लाह ताला ने ये खोल कर और एक आयत में ये भी फरमा दिया कि सरकार को गम ना हो, सरकार के गम को दूर करने के लिए बशरियत के तकाजे से भी सरकार गम ना खाना, उस गम को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ये भी फरमा दिया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वहुवा अअलमु बिल मुहतदीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हिदायत नहीं देते जिसे दोस्त रखो, हाँ खुदा हिदायत देता है जिसे चाहे। यानी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है इस आयत के जरिए से, या रसूल अल्लाह आप हिदायत नहीं देते। अल्लाहु अकबर। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है आप हिदायत देने वाले हैं। इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। यानी आप दावत देते हैं अल्लाह ताला की तरफ है। फिर हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से जो होती है वो हुजूर के ज़रिए से ही होती है। हुजूर ही हकीकत में अल्लाह की हिदायत को अता करने वाले, देने वाले। बात समझ में आई? तो यहाँ जो अल्लाह ताला फरमा रहा है हिदायत आप नहीं देते का मतलब आप अपने ऊपर बोझ ना डाल लें कि जिस किसी भी आप तबलीग करते हैं उसमें कुछ मान लेते हैं कुछ नहीं मानते हैं, तो आप अपने ऊपर बोझ ना ले लें कि मेरी बात लोग नहीं समझ रहे हैं। ये मत समझना अल्लाह ताला उनको समझाता नहीं है, आप बोझ ना ले लेना। हुजूर आप मेरे महबूब हैं, महबूब आप बोझ ना उठा लेना। ये बात समझाने के लिए अल्लाह ताला सामने आकर कहता है कि मैं हिदायत देने वाला हूं, अगर मैं हिदायत न दूं तो वो हिदायत नहीं पाएगा। आप ये ना समझ लें कि आप सही तरीके से तबलीग नहीं कर रहे हैं, ये जो आप समझ रहे हैं आप ऐसा ना समझें, बल्कि ये कह दिया कि आप हिदायत देने वाले नहीं। बात समझ में आया? आप
ہدایت دینے والے نہیں، حقیقت میں اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو معلوم ہوا حقیقت میں اللہ ہی ہدایت دینے والا. بات سمجھ میں آتی؟ پھر مجاز کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت دینے والے. تو ہدایت حضور سے بھی ملتی ہے، حضور ہی سے ملتی ہے. جتنے بھی صدیق اکبر کو ہدایت ملی کس سے ملی؟ مجازی اعتبار سے حضور سے ہی ملی. سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملی تو کس سے ملی؟ ہادی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. مگر حقیقت، میں لفظ بتایا نا، حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے. جس طرح حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی ربوبیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے. حقیقت کے اعتبار سے اللہ ہی ناقص سے کامل بنانے والا ہے. مگر ظاہر کے اعتبار سے، مجاز کے اعتبار سے بندے نظر آتے ہیں کہ ناقص کو کامل بناتے ہوئے بھی بندے نظر آتے ہیں، اور کھلاتے پلاتے ہوئے بھی بندے نظر آتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو کل بھی کچھ کہنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بہت گزر گیا ہے. تو میں اپنی بات، کیونکہ بات ہی بڑی عجیب ہے، اگر آج میں روک دوں تو رک جائے گا، کیونکہ یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے. ایمان یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی حقیقتاً ہدایت دینے والا، اور اللہ کی ہدایت بٹتی ہے، ملتی ہے تو دستے محمد الرسول اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور بھی ہدایت دینے والے، اللہ بھی ہدایت دینے والا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یاد رکھیں، اللہ کی ہدایت حضور سے ہی ملتی ہے. اللہ اگر ہدایت نہ دینا چاہتا تو حضور کو کی درمیان میں نہیں لاتا. بات سمجھ میں آئی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے دور رکھنے کے لیے یہ بھی بات اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دی کہ حقیقت میں ہی تو ہدایت دینے والا، آپ غم نہ کھانا. آپ ہدایت دینے والے نہیں کا مطلب یہاں آپ غم نہ کھانا. ہدایت حقیقت میں میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت بخشتا ہوں. بات سمجھ میں؟ جو راہ پانے والا ہے، میں جسے چاہتا ہوں، میری ایک منشا ہے، اس منشا کے تحت ہدایت ملے گی. آپ یہ نہ سمجھنا. تو ہم یہ وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہدایت دینے والے نہیں، تو اور اس کے دلیل میں یہ آیتیں پیش کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کی دعا قبول نہیں ہوئی، حضور نے چچا کے لیے دعا کی. یاد رکھو، چچا کے لیے حضور نے دعا نہیں کی بلکہ چاہت اور دعا میں فرق ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی منشا پر قائم رہنا سکھایا. سمجھ میں آئے؟ میں آج تھوڑی دیر اور بھی لے لیتا ہوں، مگر غصے میں نہ آئے. اللہ تعالیٰ کی منشا پر قائم رہنا، اللہ کی منشا پر قائم رہنا، اللہ کی منشا کو افضل جاننا، یہ سکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں.